سجدے میں سر رکھ کر اللہ کا یہ نام پڑھ لو، سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے 100 کروڑ ملیں گے، 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک کا ہر نام ہی بابرکت اور خاص فضیلت کا حامل ہے، لیکن ہر نام کے اعداد و شمار مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر نام کو اس کے اعداد و شمار سے پڑھنے کی برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں بھی خاص ہی ہوتی ہیں۔ اس طرح آج کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح کی رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں، اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت بھی ملتی ہے۔ اس طرح اللہ پاک کا ایک مبارک نام ہے، اگر اس نام کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس نام کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ آپ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ آپ پر بھی کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، آپ کے اوپر برکتیں نازل ہو جائیں، آپ کا گھر دولت سے بھر جائے، آپ کو شہرت ملے، ہر طرف پیسہ ہی پیسہ ہو جائے، آپ پیسے گنتے گنتے تھک جاؤ لیکن پیسہ ختم نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لازمی پڑھیے گا۔ اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہو، پریشانیاں ہو، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزے کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں اللہ کی عطا کردہ ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے صبح کر لیں، شام، رات، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، چاہو تو اسی وقت کر لو۔ کرنا آپ نے لازمی ہے، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ تو آئے ناظرین، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ کسی بھی دن جب آپ کو وقت ملے، پوری رات اور پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी मुराद है, उसकी नीयत कर लें। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, ज़ाती मकान चाहिए, तो ये कह लें कि मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, उसके लिए मैं ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मुझे इतनी रकम मिल जाए। जो रकम चाहिए वो मांग लेना। जो मसला हो, जो बीमारियाँ हो, तो ये कहना कि मेरी बीमारियाँ ख़त्म हो जाए, मैं उसके लिए ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ। जिसका जो मकसद है, जो हाजत है, अपने मकसद की नीयत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है, वो वजीफा बहुत ही आसान सा है। आपने अल्लाह ताला का सिफाती नाम या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़, ये अल्लाह ताला का सिफाती नाम है, जिसका मतलब है ए रिज़्क़ देने वाली ज़ात। या रज़्ज़ाक़ पढ़ने वाले पर ख़ास नज़र करम हो जाती है। जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस घर में रिज़्क़ का, दौलत का सैलाब आ जाता है। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। अल्लाह करीम के सामने फ़कीर बन के बैठे, अल्लाह बादशाह बनाकर उठाता है। अगर आप भी अपनी गुर्बत से निकलना चाहते हैं, फ़कीरी से बादशाही चाहते हैं, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी को खुली आँखों से देखना चाहते हैं, अल्लाह की रहमतों बरकतों को देखना चाहते हैं, अल्लाह के मौजज़ात को देखना चाहते हैं, तो या रज़्ज़ाक़ को बताए गए तरीके से पढ़ लो। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या रज़्ज़ाक़ एक बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ दो बार हो गया, या रज़्ज़ाक़ तीन बार हो गया। इस तरह से आप या रज़्ज़ाक़ को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 11 बार या रज़्ज़ाक़ पढ़ने के बाद आपने दूसरे नंबर पर एक और अल्लाह पाक का सिफाती नाम पढ़ना है। वो सिफाती नाम या वासियु है। अगर आपका रिज़्क़ तंग हो चुका है, पैसों में बरकत नहीं, जितने आते हैं लग जाते हैं, पता नहीं चलता, तो आज या वासियों को पढ़कर अपने रिज़्क़ में वुसअत ले आओ। या वासियों का मतलब है रिज़्क़ में वुसअत फरमाने वाली ज़ात। आपने या वासियों को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाज़ा फरमाएं। या वासियों एक बार हो गया, या वासियों दो बार हो गया, या वासियों तीन बार हो गया। इस तरह से आप या वासियों को अपने दाएं हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप 11 बार या वासियों को पढ़ लें, तो अब आपने तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा एक कुरानी आयत का है। आपने तीसरे नंबर पर सूरत कौसर पढ़नी है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज़्यादा हैं। जब आप सूरत कौसर को पढ़ेंगे तो आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हों, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर आती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी ज़रूर देखेगा और उसकी ज़िंदगी में तंगी के बाद खुशहाली ज़रूर आएगी। सूरत कौसर की तिलावत समात फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरत कौसर को आपने 41 बार पढ़ना है। ये ऐसी सूरत है जिसे रिज़्क़ और दौलत का खजाना कहा जाता है, जिसे कामयाबी का वो राज कहा जाता है, जिससे दुश्मन की चीखें निकल जाती हैं, जिनके रिश्तों में बंदिशें हैं, कारोबार में बंदिशें हैं, घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घरेलू नचाकियाँ रहती हैं,
घर में तमाम अफराद एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। तो दोस्तों आज सूरत कौसर को पढ़ते ही इंशाल्लाह तमाम के तमाम असरात ख़त्म हो जाएंगे। सूरत कौसर को पढ़ने के बाद आपने आखिर में फिर एक बार दरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। नाज़रीन ये कितना आसान सा वजीफ़ा है, जिस तरतीब से जिस तादाद से बताया वैसे ही कीजिएगा और आखिर में अपनी दुकान के गल्ले पर, तिजोरी पर, अपने घर की अलमारी पर, मेरी बहनें जो हैं वो अपने परस पर और मेरे भाई अपने बटुए पर, अपनी जेब पर 1 मरतबा या 3 मरतबा फूंक मार दें। नाज़रीन इस अमल की बहुत ज़्यादा बरकत है। अगर आप लोग इस अमल को रोज़ाना कर सकते हैं तो रोज़ाना कर लें। अगर रोज़ाना नहीं कर सकते तो जब जिस दिन आपको वक़्त मिले आप करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफ़े के लिए एक ही शर्त है कि बावज़ू हालत में करना है। बेहतर है कि कोई भी नमाज अदा करने के बाद सजदे में सर रख कर अल्लाह पाक के इन सिफाती नामों का विर्द करें। जब सजदे की हालत में आप ये वजीफ़ा करेंगे फिर देखिएगा कि कैसे ये वजीफ़ा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को ख़त्म कर देगा और रिज़्क़ के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। यह वजीफ़ा करने के बाद मेरा रब आपके ऊपर अपनी रहमतें फरमाएगा। और साथ में नमाज का एहतमाम लाजमी करें और कुरान पाक की तिलावत भी लाजमी किया करें। कुरान पाक की तिलावत करने से घर में बहुत ज़्यादा खैर बरकत आती है और घर अमन का गहवारा बनता है। मोहतरम नाजरीन ये तो एक तोहफ़ा है जो मैंने आपको आज पेश किया। इस पर अमल करने से आपकी सारी ज़िंदगी के मसाइल हल हो जाएंगे, आपकी आने वाली नस्लों के मसाइल भी हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द और तमाम तकलीफ़ों को अपने फजलो करम से दूर फरमाए और हम सब को 5 वक़्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि ऐ मेरे पाक अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार अल्लाह, हम सब की मुश्किलात को ख़त्म फरमा दे, हमारे रिज़्क़ में, हमारी रोज़ी में इजाफ़ा फरमा दे। मेरे अल्लाह हमें मांगना नहीं आता लेकिन तुझे तो अता करना आता है। मेरे अल्लाह हमें अता कर दे। आमीन। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। नाज़रीन अपने रिज़्क़ में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।